ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو ہلو، ہاں جمیل صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں کون؟ خیریت ہے؟ ہاں خیریت سے ہوں۔ کون؟ فقیر کا نام ارشد رضا ہے۔ یہ آپ کا پرسنل نمبر ہے؟ اب یہ کوئی ضروری نہیں میرا پرسنل نمبر ہے جی۔ جی بولے، کیا آپ کو پریشانی ہے؟ ہم کو کیونکہ اب جب دوبارہ مجھے موبائل ملائیں گے تو سوئچ آف آئے گا نمبر۔ اچھا، جی پریشانی تو تھوڑا سا تھا، لیکن ابھی میں تھوڑا کام میں بزی ہوں، اور ٹائم دو تو پھر بات کریں گے۔ اچھا، تو ٹائم مجھے دے سکتے ہو آپ 7 بجے کے بعد بھی؟ رات میں؟ ہاں مغرب کے بعد بھی دے سکتے ہو۔ ابھی تھوڑا کام ہو رہا ہے نا، میں کھڑا ہوں۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کو اس پہ میں کال کر سکتا ہوں کیا؟ اب کریں گے تو سوئچ آف آئے گا، کہہ تو رہا ہوں۔ تو کیا نام ابھی میرے پاس وہ لگایا تھا، کیا نام 75 نمبر تھا؟ ہاں اسی نمبر پہ بات ہوگی۔ تو اس سے میں لگا سکتا ہوں؟ ہاں اس پہ لگا سکتے ہیں، اس پہ بات ہو جائے گی۔ وہ مجھے وہ آپ سے بات کروا دیں گے مجھے۔ ٹھیک ہے، اوکے، میں فرصت میں اٹھاؤں گا تو بات کروں گا۔ ویسے آپ کو کیا اعتراض کیا تھا؟ بس اعتراض 2-4 آئٹم، 2-4 عقائد پر تھا۔ آئٹم؟ وہ آئٹم ہی ہے جو تمہارے جو عقائد ہے نا، وہ سب آئٹم ہی ہے۔ اچھا بھیا، آپ اس کو آئٹم کا نام دینا چاہتے ہیں؟ چلیے، کیا اعتراض تھا؟ ہلو، اچھا یہ بتاؤ ارشد بھائی، چلو بات ہی کر لیتے تھوڑا سا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ علم غیب مانتے ہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ یہ پوچھو کتنا تھا، یہ نہ پوچھو کہ علم غیب تھا کہ نہیں تھا، یہ پوچھو کتنا تھا۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر ترک و خشک چیز قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ایک قرآن میں آیت آتی ہے ولا اکبر ولا اصغر، چھوٹی چیز بڑی بھی چیز ہے۔ جو قرآن میں ذکر ہے، کون سا بھی آیت پڑھے آپ؟ بے حصہ والی جو آیت پڑھے آپ، وہ آیت میں تو مطلب جیسے کہ قرآن نے کہا، تو اس میں تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے دین کے معاملات ہیں، دنیا کے معاملات جیسے موٹر گاڑی جہاز وغیرہ یہ سب تو نہیں ہے۔ موبائل ہوا، کمپیوٹر ہوا، اور ٹیکنالوجی کے جتنے سامان ہوئے، وہ سب اتنا مطلب قرآن کھل کر نہیں بتاتا۔ ولا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین کا مطلب ہے ترک و خشک چیز۔ ایک جگہ آتا ہے ولا اکبر ولا اصغر، چھوٹی بڑی چیز۔ تر و خشک مطلب جانور جو حرام و حلال کے ہیں اور دینی معاملات ہیں وہ لیے جائیں گے، اور مفسرین نے یہ لیا ہے۔ اور بھی قرآن کہتے ہیں نا ہر بڑی چھوٹی چیز۔ ہم تو یہاں تک کہ مانتے ہیں ہمارا وہ قرآن ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے، واضح نشان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں وہ سارے علوم فیوم جمع کر دیے۔ قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قرآن ہی ایسا چیز ہے، اسلامی ایسا مذہب ہے جو سارے دین کو جو ہے منسوخ ہو جاتے ہو، یہی دین باقی رہے گا۔ ہر چیز قرآن میں موجود ہے، ہر چیز قرآن موجود میں، جو دنیا کے ضروریات بھی وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تبھی تو 2 لاکھ سے زیادہ تفاسیر قرآن مجید کی لکھ دی گئی۔ اچھا، یہ میں نے جال حق پڑھا، اس میں لکھا ہو کہ عطائی علم غیب غیب ہی نہیں ہوتا۔ ایسا ہے، علم غیب کا جو اس میں جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا ہے، جو اصطلاح میں جو علم غیب جو عطائی کہتے ہیں وہ عطائی نہیں ہوتا، اس سے مراد ذاتی ہوتا ہے اصطلاح میں۔ مطلب جیسے کہ علم غیب مطلق بولا جائے گا، جب غیب کی نسبت جو ہے علم کی جو ہے نسبت غیب کی طرف وہ مضاف الیہ جمع ہوگا تو اس سے مراد علم غیب ذاتی کا مراد۔ وہاں پہ علم غیب ذاتی کی تعریف کی گئی۔ علم غیب جب اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے وہ عطائی ہو جاتا ہے، جیسے اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو کہتا ہے عطائی علم غیب غیب نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، اصطلاح میں وہ لکھا نا، اصطلاح میں جو علم غیب، تو اصطلاحی تو مانا جائے گا پہلے نا، لغوی کہاں مانا جائے گا؟ اصطلاح میں ہی علم غیب کی تعریف جو ہوتی ہے جسے حواس خمسہ سے نہ معلوم کر سکے،
وہاں پہ علم غیب ذاتی کی تعریف کر رہے ہیں، سمجھے؟ وہاں پہ علم غیب ذاتی کی تعریف ہے. جب ذاتی کی تعریف مطلق علم غیب بولا جائے گا اصطلاح میں تو وہ ذاتی کی تعریف ہو جائے گی. جب اس کو کہا جائے گا علم غیب ہے عطائی تو وہ عطائی علم غیب آ جائے گا. جیسے عطائی کے بارے میں تو ایک دلیل ہے، کم سے کم 100-500 سے زیادہ دلیل موجود ہے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو قرآن میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ جمع ما کان یوم یکون، اللہ کے رسول کو ہے نا علم، تو اللہ نے تو فرمایا کہ وہ رسول قد قصصناہم علیک من قبل و رسول لم نقصصہم علیک، کہ بہت سے رسول ہیں. اور یہ آیت 2-3 جگہ پر ہے، میں نے غالباً 2 جگہ پر دیکھا اس کو، کہ بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے نہیں بیان کیے ہیں. اور قرآن میں بھی 24 یا 25 پیغمبروں کا نام آیا ہے. اس کے علاوہ 1,24,000 حدیثوں میں آتے ہیں، ان پیغمبروں کا تو ذکر ہی نہیں قرآن میں. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بہت سے رسول کے حالات بیان کیے کس سے، اور بہت سے رسول کے قصے تم سے نہیں بیان کیے. تو پھر اللہ تو خود کہتا ہم نے نہیں بتایا اور تم کہتے ہو سب جانتے ہیں. اس سے کیا مطلب یہ ہو گیا کہ امت کے لیے کہ جو تمہارے لیے جو ہم نے 27 جو نبی کا ذکر آیا ہے باقی حدیثوں میں آیا ہے جو قرآن میں نہیں، کچھ حدیثوں میں ذکر ہے جیسے قصص الانبیاء ہے جس میں ابن کثیر نے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے، حضرت آدم سے لے کے کئی ذکر کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ امت کے لیے کہ ہم نے بتا دیا تمہارے لیے کفایہ، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ہر علم تھا ابتدائے دنیا سے لے کے دخول جنت تک تمام علوم ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء سے زیادہ دیے گئے تھے. اور یہ بات تو بالکل متفق ہے، کیونکہ جب یہودی نے مولا علی سے سوال کیا کہ تمہارے نبی کی خاصیت کیا ہے، ہمارے نبی کو تو حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانیں معلوم تھی، ہمارے آدم کو جو ہے فلاں نے سجدہ کیا تھا، ہمارے عیسیٰ نے تو مردوں کو زندہ کیا. تو مولا علی نے اس کا جواب بھی دیا تھا. چھوڑو، ایک بات میں بتاؤں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلتی نہیں. جی، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے بہت سے قصے تم سے نہیں بیان کیے رسولوں کے، اور بہت سے کے بیان کیے. تو پھر اللہ کیسے مطلب کیا جھوٹ بول سکتا ہے اللہ رب العزت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بول سکتے کہ 1,24,000 کم و بیش آئے، تو نبی نے 1,24,000 کی بات ہے، لیکن ان کے جو معاملات ان کے اوپر کیا گزرے، کیسے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، جیسے ان کے اوپر سب معلوم تھا، نبی کو سب معلوم تھا، مگر جو امت کے لیے ضروری تھا وہ نبی نے پہنچا دیا. اللہ کا جو حکم تھا نبی نے پہنچا دیا، جو امت کے لیے ضروری تھا وہ پہنچا دیا. ٹھیک ہے، بس یہ ہے. یہ کہا جائے کہ نبی کو نہیں معلوم ہے تو یہ تو بالکل خلاف ہے. ٹھیک ہے، نبی کو ہر چیز معلوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت سب سے زیادہ جو ہے آپ کو علم عطا فرمایا. تمام دنیا کو اگر جمع کر دیا جائے تو قطرہ بھی نہیں بنتا نبی کے آگے. ٹھیک ہے، وہ تو امت کے لیے. اچھا، ایک سامان ہمارا اگر غائب ہو جاتا ہے تو ہم اتنا غصہ آتا ہے کہ اب بھی میں نے یہیں پہ رکھا تھا اور وہ لپٹ کر کسی چیز میں چلا گیا یا کسی کپڑے میں لپٹ گیا اور میں ڈھونڈ رہا ہوں ادھر ادھر، وہ لپٹا ہوا ہے کہیں، چپکا ہوا ہے کہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ملامت کرتے ہیں، اس سامان کو بھی ملامت کرتے ہیں. اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی بولیے نا. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی اور ڈولی ان کر اٹھ کر چلی آئی، پورا قافلہ چلا گیا. اور اللہ کے رسول نہ جان پائے کہ مطلب ڈولی میں اماں عائشہ بیٹھی ہیں کہ نہیں بیٹھی ہیں، اور چلے گئے، مدینہ پہنچ گئے. منافقوں نے افواہ اڑایا. تو یہ کتنی بڑی مطلب بات ہے کہ مطلب اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بہت ہلکی پھلکی تھی، کہ ڈولی والوں نے بھی نہیں جان پایا کہ مطلب میں بیٹھی ہوں کہ نہیں بیٹھی ہوں. اور یہ اللہ کے رسول بھی مطلب چلے گئے. تو کیا یہ جاننے والا اس طریقے سے مطلب اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے پیچھے؟ اور منافق کے حوالے مطلب منافق جو دیکھیے جو ہم بتاتے ہیں ہر چیز کے پیچھے حکمت پیغمبری ہوتی ہے، حکمت خداوندی ہوتی ہے. یہ بتانا تھا نا کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم. جی بالکل ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کا جواب دولت المکیہ میں بڑا پیارا جواب دیا ہے. اور رشید احمد اور کیا نام ہے اسماعیل دہلوی وہ کا ہے اشرف علی تھانوی کو استاد نے، پھر مرشد نے بھی جواب امداد المشتاق میں دیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہے یہ حکمت پیغمبری تھی، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے نہ بولا، کیونکہ جب آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگے کہ آپ اس کی کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے ان کی تو بیوی ہے، وہ تو ان کی صفائی بیان ہی کریں گے. تو اللہ رب العزت ان کی صفائی میں 18 آیت قرآن کی سورہ نور کی اتار دی. اللہ رب العزت ان کی گواہی تھی، خدا کی گواہی آئی. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے میری بیوی پاک ہے تو لوگ کہتے ارے منافق تو سوال کرتے کہتے یہ تو ان کے شوہر ہے تو ان کی طرفداری کریں گے. تو اللہ نے ان کی جو ہے پاکی کی بشارت فرمائی اور ان کی جو ہے گواہی دی. ٹھیک ہے، وہ حکمت پیغمبری ہوتی ہے. انہوں نے اللہ کے رسول نے یہ بھی پوچھا
کہ ایسا اگر تم سے کچھ غلطی ہوئی ہو تو آپ ہمیں بتا دیں, میں اللہ سے امام سیوطی نے نہیں امام سیوطی نے اس کے اوپر در منصور کے اندر بڑی اچھی بحث فرمائی ہے کہ لوگوں نے ان کے تہمت جو ہے کوشش کی اور لوگ گواہ بن کے آتے تھے کہ رسول اللہ ایسے ہوا. تو رسول اللہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ فرماتے میں جانتا تھا میری بیوی پاک ہے اور اللہ رب العزت اس کی پاکی کے لیے یہ 18 آیت اتار دی ہے. اور دلیل کے رسول اللہ فرما رہے میری بیوی پاک تھی, مگر وہ لوگ آتے تھے بہتان بازیاں کرتے تھے منافق, تو اس کے دل میں انسان کے اندر تقاضۂ بشریت آپ ہوں گے تو دل میں وہ آ جائیں گے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز جانتے تھے, تبھی تو نبی علیہ السلام ویٹ کر رہے تھے, اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا پیغام آئے. یہ سب حکمت پیغمبری ہوتی ہے. اتنا ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے قبیلے سے تلواریں اڑ گئی. تلواریں کی بات ذکر نہیں اس کے اندر کہ تلواریں اڑ گئی تھیں, وہ جنگ ہو گیا تھا. بھائی اس میں کون سا جنگ کی بات تھی؟ نہیں, تلوار اڑ گئی کہ تم ہمارے قبیلے کو کمزور سمجھتے ہو, جو کچھ بھی کر دو گے. ہم لوگ کیا چوڑیاں پہنے ہوئے, اگر ایسا ہوا ہے تو امام جلال الدین سیوطی نے بہت کم سے کم 6-7 صفحے کے اندر بہت اچھی بحث فرمائی ہے. ایسا کچھ اس میں واقعہ نہیں لکھا ہے کہ قبیلے میں لڑائی ہو گئی تو لوگ آتے تھے اور اعتراض کرتے تھے. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے, وہاں پر اللہ کے رسول نے یہ چیز بیان کیا تو صحابہ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول آپ بولے تو جن منافقوں نے یہ افواہ اڑایا ہم ان کی گردنیں مار دے. تو اس قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے, کہا کہ ایسا دیکھو ایسا ہے کہ ہم لوگ چوڑیاں نہیں پہنے ہوئے. جب خود ہم نے دیکھا کہ آتے ہوئے یہ بات ہے کہ رسول اللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے مجمع میں آقا علیہ السلام نے یہ بات کہا تھا, مگر یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہاں قبیلے کی لڑائی ہو گئی. اللہ کا پیغام آیا, وہ حکمت خداوندی ہے کہ اللہ رب العزت نے نہیں منافق کے جو گروہ والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کو تم ایسے گردن کیسے مار سکتے ہو, ہم کیا چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں, جب ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ میں آ رہی ہیں. تو اللہ رب العزت نے وہ پیغام پہنچا دیا نا, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ حکمت پیغمبری تھی. اگر آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگی گی تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو یہ کہیں گے ہماری بیوی پاک ہے. اللہ کے رسول کو نہیں پتہ چلا, گواہی دی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر جب بشارت لگی زلیخا کی, ان کے اوپر لگی کہ جو ہے تو کہا کرتا آگے سے پھٹاؤ پیچھے سے پھٹاؤ, تو بچے نے گواہی دی. یہاں حضرت آقا علیہ السلام کی جو بیوی کے بارے میں بات آئی, جوزا کے بارے میں, تو اللہ رب العزت نے گواہی دی. یہ اللہ رب العزت کی شان. اللہ کے رسول کو یہ نہیں معلوم پڑا کہ عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اس میں گولی, مطلب اس میں بیٹھی ہوئی پالکی میں کہ نہیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک چکر آپ کہیں سفر کر رہے تھے, اما عائشہ بھی ساتھ میں تھی, تو آپ کا پائل جو ہے اٹھنی کے جسم کے نیچے دبا ہوا تھا, بیٹھی ہوئی تھی اٹھنی, اور لوگ ڈھونڈ رہے تھے, اس کی وجہ سے شام ہو گیا اور پانی کی قلت بھی ہوئی. ہاں تو آیت تیمم نازل ہو گئی. اسی کے منطق کہ ہر جو ہوتا ہے آیت تیمم نازل ہو گئی. اور اللہ رب العزت نے آقا نے فرمایا کہ میری امت پچھلی امت سے اس وجہ سے امتیاز ہے کہ ان کی امتوں میں تیمم نہیں تھا. رضی اللہ تعالیٰ گئے, سنو, ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے اور اپنی بیٹی کو, حالانکہ ان کی ماں بھی لگتی ہیں, مطلب وہ حساب سے نبی کی سلسلے کے حساب سے, لیکن کہا کہ تیری وجہ سے جو ہے نا, تیری وجہ سے ہم لوگ کو آج یہ دقت اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اب تک کہیں سفر کرتے تو آگے ہم لوگوں کو پانی وانی مل جاتا. ہاں تو اس میں آیت تیمم نازل ہوئی تھی, تیمم کے بارے میں. وہ تو ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کے لیے کہا, اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ وہ ان کی بیٹی, آپ اپنی بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے تو اتنا حق ہے والد کا کہ انسان کو ڈانٹ سکتا ہے, اور وہ نبی کی بیوی میں تھی, ان کی بیٹی بھی. یہ ڈانٹنا کیوں؟ معلوم ہوتا تو کیا کوئی کسی کو معلوم ہوتا؟ وہ جب آیت تیمم نازل ہوئی تو ان کو سارا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ یہ سارا معذرہ آیت نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے چلتی نہ آیت تیمم نازل ہوتی. تو حکمت پیغمبری ہوتی ہے, ہر چیز ہوتا ہے قصے کے ذریعے, حکمت کے ذریعے ہوتا ہے. त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. ہاں کٹ گیا فون. ہلو, ہاں کٹ گیا فون. وہ ہر وہ چیز ہوتی ہے, وہ حکمت پیغمبری ہوتی ہے, وہ حکمت خداوندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے کہوں کہ اللہ رب العزت تو قادر و مطلق ہے, تو بابری مسجد شہید ہو رہی تھی, اللہ رب العزت نے کیوں نہیں بچا لیا؟ مسجد نبوی کے اندر باڑھ آئی تھی, کعبہ ڈوب گیا تھا, تو پھر اللہ رب العزت نے باڑھ کو کیوں نہیں روک لیا؟ تو یہ سب حکمت خداوندی ہوتی ہے, پیغمبری, وہ ہر حکمت سے چیزیں ہوتی ہیں. ایک بات بتا دوں, وہ کیا نام ہے, دیکھیے آپ کو جتنے مجھ سے سوال پوچھا میں ایک سوال کا جواب دوں گا, مگر آپ کو میں جواب دینے سے اس لیے کیونکہ آپ سنی نہیں بنیں گے, آپ وہابی رہیں گے, کیونکہ آپ کے دل میں کجی بنے. میں جو میں نے پڑھا ہے تو مجھے تو اشکال رہے گا ہی نا. تو اشکال میں آپ کی کہتا رہا ہوں, میرے سارے سوال کا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو جواب دیا تھا, تب بھی آپ نہیں باز آئے, کیونکہ آپ کا کام ہے سوال کرنا اور میرا کام ہے ہر چیز کا دلائل کے ساتھ جواب دینا. آپ سنی نہیں بن پائیں گے, اللہ ہی آپ کو ہدایت دے, ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں مگر آپ کو جواب نہیں. ابھی میرے ذہن میں ایک سوال تھا, وہ آپ نے اس کو گڑبڑ کر دیا. اچھا, تو میں یہ بول رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, آپ جیسا کہ ایمان رکھتے ہیں, تو دو واقعہ میرے سامنے اور بھی پیش آ رہا ہے.
वो वाक़या ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह सुबह की नमाज के लिए लोग जा रहे थे, तो एक औरत के ऊपर किसी ने एक हमला कर दिया जिना की नीयत से, और वो भागा। जब वो चिल्लाई तो वो भागा, और उसके पीछे जो आ रहे थे वो भी भागे, तीसरा भागा, यानी जो आगे वाला था वो भाग गया, और जो उसके पीछे था वो उसको लोगों ने पकड़ लिया। अब वो अंधेले की वजह से पहचान नहीं पाए, उन्होंने कहा कि हाँ यही है, और उसको अल्लाह के रसूल ने संसार करने का हुक्म दे दिया। जब लोग पत्थर ले लेकर खड़े हो गए तो जो जिना की नीयत से छेड़ा था वो आदमी दूर खड़ा होकर चिल्लाया कि सुनो, रुको, इसको मत मारो, मैंने इनको छेड़ा था। तो वो आया तो उसको संसार किया गया। अगर वो आदमी ना कहता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को संसार करने का हुक्म दिया था। तो क्या इल्म गैब रखने वाला इस तरह कर सकते हैं? देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इल्म गैब जो आप ये सब बातें निकाल के लेके आ रहे हैं, इसका जवाब हमने पहले आपको दे दिया है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये वाकया को आप मुझे दलील के साथ भेजेंगे, उसके बाद फिर मैं वाकया देखूंगा, फिर उसके पीछे हिकमत मैंने बता भी चुका हूँ मैं इसके बारे में। चीज में लीला, यानी सब चीज लीला, राम जी की सीता भाग गई। सुनो, राम जी की सीता को होती है, कृष्ण की लीला, उनकी लीला। तो बोल रहा हूँ ना, राम जी की सीता जो है रावण उठा ले गया, और राम जी को पता भी नहीं कि कौन से इलाके में गई, कहा लीला है। हनुमान जी पता लगाए आए तो रास्ता बनाए, तो कहा कि राम जी क्यों नहीं पता लगा पाए, तो लीला है। किसी के मुशाबे नहीं, इस्लाम दीन हक है। हाँ, तो इस्लाम के अलावा कोई सच्चा मजहब नहीं है। आप उनको लीला मत बताइए, ठीक है? लीला नहीं होती हमारे में, हिकमत खुदाबंदी, हिकमत पैगम्बरी होती है। बात वो हिंदू भी ऐसे कहते हैं ये लीला थी, तो लीला तो उनको कहने दो लीला ना। भाई लक्ष्मण को तीर लगा, बात को भी लीला कहते हैं। लक्ष्मण को तीर लगा तो अलग, राम जी भगवान थे तो अच्छा कर देते, तो जड़ी बूटी लाने की, पूरा पहाड़ उखाड़ के लाने की हनुमान की क्या जरूरत थी? हाँ, तो कहा कि वो लीला थी। तो उनके यहाँ लीला हो, आपके यहाँ भी लीला। देखिए, वो तो उनका जवाब देंगे। देखो, वो खुद जवाब देंगे कि लीला क्या थी, उससे हमसे नहीं मतलब है ना, आपसे मतलब है। क्या मुसलमान है, ठीक है, वो अपने धर्म की किताबें पेश करेंगे, आप थोड़ी ना मान लेंगे। हमको अपने मजहब की बात है, हिकमत पैगम्बरी होती है और हिकमत खुदाबंदी होती है, ठीक है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सी बातें जानता है, उसके बाद भी सब कुछ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सब कुछ करता है, उसके बाद भी वो फरिश्तों के जरिए काम करवाता है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजिज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नातवा है। मौत देने वाला अल्लाह ही है, मगर मौत को मौत अल्लाह ही देगा, मगर फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मुकर्रर करके रखा है, बादलों को मुकर्रर करके रखा है। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजिज़ है? नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया को खल्क़ किया, उसके बाद उसका निज़ाम बरकरार करवाया। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हुक्म में सब कुछ मुसलमान ही नहीं कर सकता? पैगम्बर भेजने की क्या जरूरत है? नबी भेजने की क्या जरूरत है? फरिश्ते बनाने की क्या जरूरत है? ये सब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर मत जाओ। नहीं, ये बात जो है पैदा हो सकती है भाई, ये खिदमत पैगम्बरी होती है, हिकमत खुदाबंदी होती है, ठीक है? आप हिंदू पे जाते हैं, आप उनके ऊपर जाते हैं, तो मैं आपको इस्लाम की दावत बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं खुदा पे मत जाओ, तो खुदा तो बहुत चीज करता है, मगर उसके पीछे हिकमत होती है। वैसे पैगम्बरी की हिकमत होती है। खुद फरमाता है कि ला युसअलु अम्मा यफअलुहुम युसअलून, अल्लाह जो चाहे करे उससे नहीं पूछा जाता है, तुमसे पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाता भाई, पूछा नहीं जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिरों को भी औलाद देता है, अल्लाह काफिरों को औलाद देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है। खेत में तो फिर अगर ये क्या करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया बनाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत का फरिश्ता रखा, अल्लाह ताला मौत खुद नहीं कब्ज़ कर सकता। आप कहोगे अल्लाह ताला मौत को भी मौत देगा, ये अल्लाह का कादिर है, मगर अल्लाह ताला दुनिया फरिश्तों को मुकर्रर करके रखा है। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजिज़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाओगे? नहीं, तो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलाएंगे नहीं। हिकमत होती है मिलाना, और हिकमत में फर्क होता है कि अगर खुदा किसी चीज को ढक रहा है तो नहीं जानता, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों पर लिख दिया था कि यहाँ से एक बंदा गुमराह होगा और वो मलून बनेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता फिर आदम का किस्सा होना, फिर ये मामलात होना, उसको ढकेलना, उसको जन्नत से बाहर करना, लिखा हुआ है सबका। तो फिर जो ये सब हिकमत खुदाबंदी होती है, हिकमत पैगम्बरी होती, किसी चीज के बारे में ना जानता, लेकिन हर चीज जिसमें हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला फरमाती कि हजरत आयशा ने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा अगर मैं चाह लूँ तो मेरे पीछे सोने के पहाड़ बने, सोना पहाड़ बन जाए, मेरे पीछे पीछे चले। तो अल्लाह रब्बुल, तो ये नबियों के इख्तियार है, ये नबियों की हिकमतें हैं। तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ ये भी फरमाया कि जो मालदार होता है ना, वो जो कयामत से 40,000 की कितने हजार पीछे उसका हिसाब किताब होगा। क्या होता है? पहले होता है? जो मालदार अमीर होता है ना, उसका हिसाब जो है ना बहुत बाद होता है,
बहुत वो जो बाद होता गरीब तो होते सबसे हैं फिर तो नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली सबसे बाद में होगा, क्योंकि वो नवाब भी था और पैसे भी उसके पास बहुत थे। वो वो इतने आलिम भी रकम था, के उसने पैमाने कम से कुछ कम नहीं कितनी होता, किताबें भी वो लिखी हैं। बादशाहों की बात हो रही है। नहीं देखो, वो तो बादशाहों मालदार की बात बात हो की तो रही वो है। तो नवाब था, नवाब सिद्दीक हसन खां मालदार भोपाली, तो इतने अंग्रेजों ने वो उसको जो है नवाब की उपाधि दी थी। अंग्रेज वो ने तो उसको उपाधि दी थी कि आप नवाब सिद्दीक कहलाओगे आप। तो अरे तो ये उतने सब नवाब बातें वैसे मत नवाब किया करो बनाने बेटा, कितने ये थे? सब अब इतना नहीं जानते हो वो तुम। सुनो तो पहली बात तो तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को मत लाया करो बीच में। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई नहीं ला रहा है, जो है ठीक ना, है, ये सब हिकमत पैगम्बरी होती है, हिकमत खुदाबंदी हिकमत कुछ होती है, नहीं है। ठीक है, हिकमत ऐसा थोड़ी पैगम्बरी नहीं होती है, होता। हिकमत खुदाबंदी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अच्छा नमरूद को जलील करने की चाहा तो एक मच्छर से जलील कर दिया। अल्लाह ताला तो चाहता तो अच्छा, ये हिकमत है, तो नाबूद कर हिकमत देता। है। सुनो तो ये एक देखो अल्लाह हदीस की में हिकमत होती है कि अल्लाह अच्छा, रब्बुल इज्जत किसी को चाहे। मैं अबाबील बताता को हूँ, मैं सुनो, बताता हूँ। अबाबील को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेज दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को नहीं भेज सकता था, अरे वो तो मगर माछी का अबाबील छाता भेज देवे अबाबील तो के जरिए तुमको उनकी तबाह। लोगों की औकात बता दी। मैं बोलता हूँ यहाँ एक पे हर चीज को प्रधानमंत्री अल्लाह की हो पढ़ाई होती है। और माछी का छाता भेज देवे अल्लाह रब्बुल, तो प्रधानमंत्री की गू निकल जाएंगी। कितना बड़ा भी प्रधानमंत्री हो, और अगर एक माछी का छाता जो लपटिया जाए प्रधानमंत्री को, क्या हो तो जाए? प्रधानमंत्री साहब की संडास निकल जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री जो हो सकता होगा भाई, गोली बंदूक के बीच में रहते हैं ना, अरे तो हो तो इनको सकता कोई है। नहीं तो कर फिर देखिए सकता। हाँ, ये सब हिकमत तो पैगम्बरी होती है, अल्लाह हिकमत रब्बुल इज्जत की खुदाबंदी बात होती ही है। मत करो। देखिए अल्लाह ऐसा- रब्बुल इज्जत की बात ही मत करो। अरे अल्लाह इंसान रब्बुल को अल्लाह इज्जत ने की मैं फरमाया कि बात मैं तो खलकल तुमको बता रहा इंसान हूँ। ज़ईफ़ा, हमने इंसान को कमजोर पैदा किया, ज़ईफ पैदा किया, उसकी बात करो, उसकी बात तो करो। फिर उनको तो भाई अल्लाह उनकी क्यों नहीं बात करूँ मैं, तो बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अल्लाह, अच्छा ये बताओ, तो तुम्हारे फिका में भी ये चीज लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तुम्हारे फिका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब मानने वाले को काफिर कहा गया है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब मानने वाले के लिए, जाती तौर पर मानने वाले के लिए काफिर किया गया, ठीक है, जाती जो मानता है, मगर बगैर अल्लाह का है, जाती है, अब्दी है, लामहदूद है, उसका खुद का है। जो मखलूक का है वो अता करदा है, वो मखलूक है, अताई है, और वो जो है हादिस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कदीम है, जाती है, उसका अब्दी है, ठीक है, इसमें फ़र्क करना चाहिए। तुम्हें अभी कुछ भी नहीं मालूम है बेटा, तुम लोग बात करते हो, इतराज़ करते हो, इतना भी तुमको तमीज़ नहीं है। अच्छा, अताई तो पूरा जिस्म मेरा है अल्लाह का, तो फिर अताई है, तो फिर आप बताओ, अल्लाह तुम भी देखते हो, अल्लाह भी देखता है, वो समीउ बसीर, बंदा भी देखता है, बंदा भी सुनता है, मगर तुम्हारे देखने में अल्लाह देखने में फ़र्क है नहीं है। अब बताओ फिर अल्लाह का है वो जाती है, अब्दी है, उसका जाती है, मखलूक नहीं है, खुद का उसका है, जाती है, और जो मखलूक का है वो अताई है। तुमको इतना ही तमीज़ नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तभी तो वहाबी की दिमाग जो है घुटने में होती है। लेकिन ये तुम्हारे अकल में लग रहा है कि ये चीज कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी संगीन वाक़यात गुजर गए। देखिए संगीन वाक़यात गुजर गई, ये हिकमत पैगम्बरी होती है, अच्छा, ठीक है, हिकमत पैगम्बरी होती है, वो हिकमत खुदाबंदी होती है। हर चीज़ हिकमत के, और हर चीज़ हिकमत से चलती है, दुनिया के निज़ाम से चलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का निज़ाम बरकरार किया ये सूरज से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को पैदा किया, चाँद को पैदा किया, सितारों को पैदा किया, बारिश को पैदा किया, ये सब हिकमत के ज़रिए होते हैं, सब उनके सब काम करते हैं, फरिश्ते उनके हुक्म पे काम करते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा जैसे दुनिया एकदम से बना दी, वैसे निज़ाम को एकदम से बना देता, तो ये सब निज़ाम से, उसके हुक्म से सब चलता है, ठीक है। अच्छा, बुखारी में कम से कम 10 जगह पर ये हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कबीले की तरफ एक अफवाह उड़ा कि कोई वो आ रहा है, मतलब कोई काफिला आ रहा है हम लोग पर हमला करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये अफवाह उड़ा कि पहाड़ की तरफ से कोई आ रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार होकर उस पहाड़ी की तरफ गए दौड़कर कि देख के आता हूँ कि मतलब क्या है ये। इससे पता नहीं चलता कि अल्लाह के रसूल अगर जानते कि हाजिर नाजिर हैं तो वो पता लगा लेते कि भाई ये अफवाह है, तो दौड़कर घोड़े को कहते हुए आके कहते कि देखिए हाजिर और नाजिर का अकीदा ही नहीं समझ पाए। हाजिर और नाजिर का मतलब है कि यहाँ भी हाजिर है वहाँ भी हाजिर है, ये नहीं अकीदा है। पहले हाजिर और नाजिर का मतलब समझे। हाजिर को मतलब होता है मौजूद होना। जैसे आप यहाँ पे हाजिर हैं और आप अपने 2 किलोमीटर तक वहाँ पे काम आपके चल रहा है बिजली का, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं, तो वहाँ तक नाजिर है। तो हुजूर फ़खरे दो आलम अलैहिस्सलाम अपनी मज़ार मुक़द्दसा में जलवा अफरोज़ है जहाँ, और दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे जो है राय के हथेली के बराबर दाना। अब इस तरह हाजिर नाजिर, ये थोड़ी ना यहाँ हाजिर हो वहाँ नाजिर है। अच्छा, एक मैंने और किताब पढ़ा था, देखो अभी फिर भागे इसके ऊपर, कितने सवाल पूछते हो। ना मैं बताता हूँ, तब्जीरुन नवाजिर करके एक किताब था, वो उसका ये इसका देवबंदी का ही किताब है, उनका क्या नाम है, अच्छा नाम है, मैंने उनका 2-3 किताब मैंने पढ़ा है। उन्होंने एक हदीस नकल किया कि ठंडी का मौसम था, बहुत कोहरा गिर रहा था, यानी
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو جا کر اس علاقے میں پتہ لگا کے آوے ہے کہ وہاں پر کچھ مطلب افواہ اڑا، وہی بات پھر کہ کوئی افواہ اڑا کہ وہاں پر کچھ کوئی قبیلہ حملہ کے لیے آ رہا ہے، تو کوئی صحابی نہیں اٹھا. پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا، تب ایک صحابی جو ہے کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں جاتا ہوں دیکھ کے آتا ہوں کہ وہاں پر کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. بتاؤ کیا علم غیب رکھنے والا، حاضر ناظر ہونے والا اس طریقے سے پھر وہی بات میں آپ کو بتا رہا کریں گے؟ ہوں جی، میں بالکل بتا رہا ہوں آپ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا. تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا اور حضرت ادریس کو 72 زبانوں کا علم تھا. ہر نبی کو الگ الگ زبانوں کا علم تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے بڑھ کر ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو زبانیں سیکھنے کے اوپر حکم بھی کیا. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاجز تھے ان کو زبان نہ سکھاتے؟ اگر اپنا لعاب دہن ڈالتے یا مٹی کو ڈالتے تو سیکھ جاتے. مگر وہ حکمت کے تحت ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کام کے لیے بھیجنا. اللہ کے رسول کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بتاؤ تم یہ امتی ہو نبی کے جو اپنے نبی کو ان پڑھ کہہ رہے ہو؟ نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارہ میں اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور تم کہہ رہے ہو نبی ان پڑھ تھے. نعوذ باللہ. یار تم تو یار سارے ریکارڈ تم نے توڑ دیا. ہندوؤں کے ریکارڈ توڑ دیا، یہودی نصرانی کا ریکارڈ تم نے توڑ دیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا. اچھا، قرآن کہاں کہہ رہا ہے تم کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان پڑھ تھے. نعوذ باللہ. نبی ان پڑھ ہوتا ہے؟ نہ تم ایمان جانتے تھے نہ تم کتاب جانتے تھے. نہ تو کتاب سے نہ تو ایمان جانتے تھے نہ کتاب جانتے تھے. نعوذ باللہ. اس سے کیا مراد ہے؟ مفسر نے لیا ہے. آپ کتابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے، وہ بچپن میں کہا انی جو ہے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے اوپر پر کتابیں نازل کی جائیں گی. یہ سب بشارت دے رہے ہیں بچپن میں کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا، کتابیں دے دی سورہ مریم کے اندر. غار ہیرا میں کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. نعوذ باللہ. پڑھا ہوا نہیں، مگر کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوا. نبی کی حکمت ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العزت پڑھاتا ہے، استاد نہیں پڑھاتا ہے. ارے یہ بتاؤ، اگر نبی کو کوئی استاد پڑھائے گا، یہودی نصرانی کا کوئی پڑھاتا تو پھر یہودی نصرانی صحیح کرتے کہ تو تمہارے نبی کو تو پڑھانے والے ہمارے استاد ہیں. تو پھر کیا جواب دیتے یہ بات کہ نبی خود دنیا کو جو علم دینے آیا وہ خود دوسروں کا محتاج ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے، دوسروں کا محتاج نہیں ہے. وہ میں مانتا ہوں اللہ نے پڑھایا، لیکن اس سے پہلے نبی کو تو بہت نبی تو اس وقت نبی تھے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی و پانی کے درمیان تھے. کن تو نبی و آدم و بین روح و جسد. نبی تمہیں اس وقت تھا جب آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. تب تم آخری نبی کیسے مانتے ہو؟ تو آخری نبی کیونکہ نبی کو آخری بھیجا گیا. تمہارا آخری پر ایمان نہیں ہے اس کے آخری پر ایمان ہے بیٹا، مگر یہ تھوڑی نا اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں تھے. مچمچ چل رہا ہے پاکستان میں. دیکھو میرے لال، میری بات سنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا دیا تھا. کوئی نبی آیا نہیں تو دنیا خلقی نہیں ہوئی تھی. آخری نبی بھی اس وقت بنا دیا گیا تھا، مگر اعلان نبوت 40 مہینے کے آپ کو اعلان ملا، نبوت کا اعلان ملا کہ آپ اس کو جو ہے اعلان عام فرمائیے. 40 سال سے پہلے آپ پڑھے ہوئے تھے؟ بالکل پڑھے ہوئے. تو پھر عبادت کس کی کرنے جاتے تھے غار ہیرا میں؟ اچھا، کس خدا کی عبادت کرنے جاتے تھے غار ہیرا میں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کھانا لے کے جایا کرتی تھی. سورۃ حلبی میں آیا. تم یار سنو میری بات سنو. وہ حدیث جس میں جب صلح ہوا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اے علی کہاں پر محمد لکھا ہوا ہے؟ محمد وہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لوگ بولے کہ میں محمد بن عبداللہ سے صلح کر رہا ہوں، رسول مت لکھو. علی کو کہا گیا تو علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا رسول. تو کہا اے علی کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کہا مٹا دو. تو کہا میں نہیں مٹاؤں گا. انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے مٹایا، لیکن کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور اللہ کے رسول خود کہتے تھے کہ تم فلاں زبان سیکھو، تم فلاں زبان سیکھو. اللہ کے رسول خود لوگوں کو صحابہ کو کہتے تھے کہ تم یہ زبان سیکھو. ہاں اللہ کے رسول خود کہتے ہیں تو ان کو خود نہیں آتا تھا. اللہ کے رسول نعوذ باللہ. تم پر لالت ہو، تم مسلمان ہو. تمہاری شکل بھی بدصورت ہوگی. جو نبی کے اوپر یہ تہمت لکھتے ہو کہ نبی کو معلوم نہیں تھا. اچھا یہ بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو 7 لاکھ زبانوں کا علم جانتے تھے، اور حضرت ادریس آئے تو 72 زبانوں کا علم جانتے تھے. اور میرے نبی جو آئے ہیں ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، ان کو کوئی زبان کا علم نہیں تھا. نعوذ باللہ. ان کو تم کہہ رہے ہو عاجز تھے، وہ محمد نام نہیں جانتے تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے. تو کہاں حدیث میں ہے یار؟ حدیث میں تو اس سے حدیث سے مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی معاذ اللہ حدیث کا جھوٹ بولے گی کیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو نبی یہ اس سے تم یہ تاثر لوگے کہ جو ہے وہ لوگ تم سے اس سے پہلے قرآن جانتے تھے. نبی حضرت علی منبر رسول پر کھڑے ہو کے کہتے تھے سلونی ان تفقدونی، جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لو، میں علی وہ سارے علم خزانے کو جاننے والا. وہ کس کے بارگاہ میں پڑھے تھے؟ وہ نبی سے پڑھے تھے.
हाँ, मैं जो हदीस नबी सुना से रहा हूँ, पढ़ा तुम हो बोल वो रहे हो तो कि लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो, और जो नबी अलैहिस्सलाम को तुम उनको अनपढ़ कह रहे हो। लानत हो ऐसी जिंदगी के ऊपर जिसमें नबी की गुस्ताखी शामिल हो। लानत हो जो नबियों पर गुलू करते हैं। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह नबी के रसूल ऊपर ने कौन फरमाया, गुलू करता है? ला तकरूनी नबी के ऊपर कौन गुलू करता है? तुमसे तो अच्छे यहूदी हैं, तुमसे अच्छे तो ईसाई हैं, वो तो ऐसी सी झूठी झूठी करामतें बयान तो करते अपनी नबी की शान में जो उनसे मंसूब भी नहीं है। तो वो भी तो गुमराह है ना, कैसे गुमराह है? वो अपनी नबी की शान बयान करते कि हमारे नबी के पास ये था, हमारे नबी के अल्लाह पास के वो था। रसूल ने फरमाया कि तुम यहूदियों की तरह मेरी शान मत बढ़ाना। कमा क्या यहूदी की तरह शान नहीं बढ़ाना? वो है कि यहूदी ने खुदा का बेटा मान लिया था उज़ैर को, जिस तरह ये नसरानियों मत ने ईसा कहना बिन मरियम को हज़रत ईसा बढ़ाया, को खुदा का बेटा मान लिया था, ये मेरी तरफ निस्बत मत करना। अरे मैं तो मेरी बात सुनो जमील, फकूल अब्दुल्लाह व रसूल, जमील मेरी बात मैं सुनो। अल्लाह का बंदा उसका रसूल हूँ। अरे इसके मेरी अलावा बात कुछ सुनो, नहीं। मेरी बात सुनो। इसके अलावा ना हाजिर नाजिर, ना बिल्कुल मालिक मेरे मुख्तार, नबी को सब ना कुछ था, नूरो तुम तो बसर, नबी ना को कुछ माज़अल्लाह कह रहे हो, मेरे कुरान नबी खुद ज़माने कहता नहीं है, जानते थे, कुरान नबी खुद कहता है अलैहिस्सलाम कि नबी माज़अल्लाह सल्लल्लाहु अनपढ़ थे, अलैहि नऊज़ वसल्लम बिल्लाह। ईमान नहीं जानते थे, सारे ना सहाबा अल्लाह को के रसूल आपने किताब सकी जानते बना थे। दिया, अली को जो पढ़ा दिया, सलूनी तुम्हारे के मिंबर अहमद पर रजा बैठा ने दिया। खुद, हाँ, उसको तुम कह तुम्हारे रहे हो अहमद रजा, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ तुम्हारे बिल्लाह। अहमद रजा ने तुम पर खुद लानत हो। हजरत लिखा है, आदम अलैहिस्सलाम को जो लानत 7 तुम लाख पर हो ज़बानों का और इल्म था, हजरत सुलेमान को जो बेशुमार लानत। परिंदों की ज़बानों का इल्म था, उनको कहाँ से इल्म आया था? उनकी नबी कौमों ने ये कभी नहीं पूछा उनसे कि आपको ये ज़बान कहाँ से, आपने किससे पढ़ा? मगर इस उम्मत की बदतरीन कौम यहूदी, ये तुम तो यहूदी नसरानी से बदतर निकले जो कह रहे नबी ने कहाँ पढ़ा। तुम लोग गुलू करते हो, तुम लोग चूतिया हो। कभी सुलेमान की कौम ने पूछा उनसे? कभी दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने पूछा कि तुमको ज़बानों का इल्म कैसे मालूम था? तुमको किसने सिखाया? हाँ, तुम चंद परिंद की आवाज़ें कैसे जानते थे? हुदूद परिंदों को कैसे हुक्म देते थे? हाँ, उनसे कभी उनकी कौम ने पूछा? मगर तुम ये बदतरीन कौम है जिसका कलमा पढ़ते हो, वो कहते हो वो अनपढ़ था, वो जाहिल था, नऊज़ बिल्लाह, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। जिसने पूरी पूरी दुनिया को आलम जो नूर से भर दिया हो, जो हजरत आदम को 7 लाख ज़माने मालूम हो, नबियों को वो नबी से तुम कह रहे हो, मुशाबे कर रहे हो कि उनको कुछ नहीं मालूम था। तो हदीस में क्यों आया कि अल्लाह के रसूल ने कहा है, अली बताओ कहाँ लिखा हुआ रसूलुल्लाह? तो इससे क्या मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम नहीं जानते? हाँ, ये तासुर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अगर मैं पूछ लूँ आपसे, मैं जानता हूँ भी आपने घर में खाना खाया, ये मैं पूछ लूँ आप क्या खा के आए, तो क्या गलत बात है? नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को सीख दी है, उम्मत ने नबी को सुन्नत तरीका दिया है। अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उससे कहो कौन ये उम्मत ने सीख दी है, इस्लाम का पैगाम नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने शादी नहीं की, हजरत ईसा तो पादरी को चाहिए तो शादी ना करे, अपनी सुन्नत नबी की सुन्नत पर अमल करे, मगर वो अपनी सुन्नत नबी की मुखालिफत करते हैं। वो तो दिन बढ़ाने के लिए लोगों को पैसा देते हैं, शादी करते हैं। हाँ, तो तुम लोग इस तरह हो कि अपने नबी की शान झूठी बयान करते हो, अपने नबी की शान में गुस्ताखी करते हो, इतनी बदतरीन गुस्ताखी करते हो। तुम्हें ये सब तुम्हारे नसीबों में कि नबी को अनपढ़ कहो, नबी को ये जाहिल कहो। का ना पढ़ा लिखना ये अच्छी बात है। नऊज़ बिल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ और जाहिल कह रहे हो, तुमसे बड़ा जाहिल कौन होगा? अरे यार, अब तुम समझते नहीं यार, तुम बहुत से काम अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के जरिए करवाता है, तो क्या अल्लाह को आजिज़ समझोगे कि अल्लाह नहीं कर पाता है? नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत से काम हजरत सहाबा के जरिए करवाए, तो क्या नबी आजिज़ थे? नबी अलैहिस्सलाम ने चाहा तो चांद के टुकड़े कर दिए। नबी अलैहिस्सलाम ने चाहा अगर मैं चाहूँ तो पहाड़ पीछे पीछे आ जाए, वो तो नबी के चाहने से, वो तो मालिको मुख्तार है। मगर नबी अलैहिस्सलाम आजिज़ी इनका इख्तियार की, गरीबी इख्तियार की, नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत मारिफत इख्तियार की, ये उम्मत को पैगाम दिया है। हर नबी दाऊद बादशाह थे, मगर क्या लोहा को पिघला कर लोग जो है अपने काम किया करते थे, अपने उससे जो खर्चे चलाया करते थे। अगर चाहते तो क्या वो आजिज़ थे? हजरत दाऊद आजिज़ थे? वो लोहा पिघला कर काम किया तो बादशाह के मालिक थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों से काम करवाते थे, क्या वो आजिज़ थे? जब वो जिन्नों को कैद कर लिया करते थे, तो क्या जिन्नातों से काम करते थे? वो जान हजरत सुलेमान हवा को हुक्म दिया करते थे, हवा लेके जाती थी, तो क्या वो आजिज़ थे? वो खुद नहीं उड़ सकते थे हवा में? सुलेमान से परिंदे ने कहा था कि ऐसी चीज देख के आ रहा हूँ जिसे तुम नहीं जानते। तो वो चीजें देख के आ रहा हूँ, ऐसे अजाबात देख के आ रहा हूँ कि वो ऐसे चीजें वो करती हैं, तो क्या मतलब सुलेमान को नहीं मालूम था बिल्किस क्या है? हाँ, तो नहीं मालूम था ना, तभी तो अभी मैं आपके पास जाऊँ, आप जानते हो वो ऐसे से आप अजायबात देख के आओ, मुझसे आप कहोगे नहीं अरशद मैं ऐसे से अजायबात देख के आओ जो तुम नहीं मालूम है, तो मैं कहा बयान करो। तो क्या नबी ने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम है? तुम बोलोगे कि मैं भी जानता हूँ। अच्छा ये बताओ, हजरत सुलेमान ने हुजूर से कहा कि मुझे नहीं मालूम है। अच्छा बताओ तू क्या देख के आया है? मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम का लफ्ज दिखा दो। हुजूर ने आकर कहा कि मैं आपको वहाँ गया था और मैं ऐसी चीजें देख के, तो क्या सुलेमान ने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम है? अच्छा तू बता। क्या जानने वाले से ऐसा कोई बोल सकता है कि भाई क्यों नहीं बोल सकता? भाई नबी को तो हर चीज मालूम होता है अल्लाह के हुक्म से। क्यों? अल्लाह आता फरमा देता है। हाँ, हजरत सुलेमान को चींटी की आवाज हजरत सुलेमान ने सुन ली, तो क्या चींटी की आवाज हजरत सुलेमान सुन सकते तो बिल्किस का मामला नहीं जान सकते? चींटी की आवाज सुन सकते, चींटी से बात कर सकते, बिल्किस का मामला नहीं जानते वो?
वैसे चीटी नहीं आप से तुम बात ऐसे कर सकते गुलू हैं, कर रहे हो, कोई जिक्र दलील कुरान में आया है। कोई दलील नहीं दे, बस ये नहीं जान सकते, वो क्यों नहीं जान जानते? सकते, कोई अच्छा ये दलील बताओ, हजरत चीटी का दलील वाक्य दो तो तुम ना, मानते हो कि हजरत सुलेमान से चीटी ने दलील गवाही दो ना थी? भाई। चीटी ने बोला हजरत दलील आपका दो ना। लश्कर गुजर रहा है, का ऐसा ना हो कि आपका लश्कर काट दे। उन्होंने आपके कई मील पे आवाजें सुन ली, चीटी से बात कर ली। क्या हजरत बिल्किस का वो नहीं जानते थे? बिल्किस का क्या मामला है? नौजुबिल्ला, नबी को ना जानना, हंसो मत, ये नहीं जानते हंसो मत, हंसो मत, ये तुम्हारी, ये तुम लोगों की मक्कारी है। ये तुम लोग ये हिकमत तुम्हारा पैगंबरी को गुलूपना अलग है। अलग रूप दिया करते हो। अगर खुदा किसी चीज का अच्छा। काम इरादा करे तो वो खड़ा हो देता है, और वो फरिश्तों के जरिए करवाए तो तुम उसको आजिज नहीं समझते हो, खुदा को आजिज नहीं समझते हो। नौजुबिल्ला, हम कहाँ कहते हैं खुदा आजिज है? मगर किसी के जरिए अल्लाह ताला पानी भी बरसाता है तो बादलों के जरिए बरसाता है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो जमीनों से बारिश करवाए, अल्लाह ने ऐसा निजाम बर्पा करके रखा है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जहाँ कुदरत का मुशाहिदा करना हुआ, कुदरत का मुशाहिदा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करवाया। जब उनकी उम्मतों ने कहा कि तुम अपने खुदा से को खुदा लड़ने जाए, तो खुदा ने ऐसे जलवे भी दिखाए। जब लोगों का एतमाद उठने लगता है तो वली अल्लाह ने करामतें दिखाते थे कि इनको करामतें दिखाओ, तब ये हक मानेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी का पत्थरों से निकलना, ये कितनी बड़े मोजिज़े की बात है। जब उनकी कौमों ने मोजिज़े से इनकार कर दिया, कहा मैं तुम्हें नबी नहीं मानता, कोई ऐसी दलील दिखाओ, सिर्फ अकल के भरोसे चलते थे वो लोग। तब अल्लाह ने हुक्म दिया, आवाज़ दो, तो नाका निकली, उसके अंदर से उठनी निकली। जब यहूदी ने कहा तुम नबी हो, मैं तुम्हें नबी कैसे मानूं? अबू जेहल ने कहा, तो नबी ने शक के कमर किया। जब दिखाने पर मामला आता तो इसी से अजायबात दिखा दे कि अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती हो, तुम लोग नबी को आज ही समझते हो। अच्छा ये बताओ अरशद रजा, तुमने सबसे गलत बात तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। तुम नहीं, इतने बड़े ये मैंने हो, गुस्सा इतने नहीं बड़े दिला। तुम, अभी मैं तुम्हें क्या कहूँ, किस मुंह से कहूँ? तुम जो है ना, सुनो, तुम जो है ना गुलू कर रहे हो। गुलू नहीं कर रहा हूँ यार, गुलू, नहीं इसको गुलू कहते हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं, अपने नबी से मोहब्बत कहते हैं। नहीं, इसी अगर को सीना गुलू कहते चीरोगे ना तब भी दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। इसी निकलेगा। को गुलू कहते हैं। गुलू नहीं कहते हैं, गुलू नहीं कहते हैं। अच्छा, गुलू सुनो, के बारे में सिर्फ अल्लाह हजरत का अली को अच्छा बताया बुखारी- गया था कि सुनो, हजरत ईसा के बुखारी नबी में- के लिए मोहब्बत में हजरत उमर से क्या फरमाया कि अभी तुम्हारी मेरे मोहब्बत सवाल कबूल नहीं का है तुम- जब मेरे तक तुम सवाल अपने का माँ तुम- बाप से बढ़कर मुझे ना मानो। जवाब तो दो जो यार, न तुम माँ बस बाप से एक बढ़कर जो मिनट। नबी को मानता है वो गुलू होता है। सुनो यार, तुम मेरी बात सुनो, ज्यादा मतलब मत तकरीर करो, तकरीर इतना करना सही नहीं है। तो फिर क्यों मेरी कहते हो बात यार सुनो। कि हजरत सुलेमान को नहीं मालूम था? तो हजरत सुलेमान ने मेरी चींटी बात की आवाज सुन ली, उनको बिल्किस का किस्सा नहीं मालूम था? अभी मैं बताता हूँ क्या क्या नहीं मालूम था। बहुत क्या क्या, अल्लाह के तुम्हारे रसूल कहने से नहीं सल्लल्लाहु मालूम अलैहि होगा। वसल्लम- हाँ सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर एक खजूर पाया, ठीक है। फिर एक जगह पे लिखा कि रास्ते में एक खजूर पाया। कहा कि अगर मैं जानता ये सदके का है या ऐसे ही किसी का गिर गया है तो मैं इसे खा लेता। ये हदीस कम से कम 7-8 जगह पर बुखारी में है। अगर मैं जानता तो इसे मैं खा लेता, अगर ये सदके का है कि नहीं है, बताओ। अल्लाह के रसूल को तो? एक खजूर मिला तो ख्वाहिश भी है कि मैं इसे खा लूं, लेकिन डर ये है कि कहीं सदके का तो कोई ले जा रहा हो, गिर गया हो, और सदका नबियों पर हराम होता है, तो नहीं खा रहे। अब क्या मालूम होने वाले को इस तरीके से बात करना चाहिए? यहाँ पे ये फिकी मसाइल है, समझे कि नबी अलैहिस्सलातु से ये उम्मत को दर्स मिल रहा है कि अगर कोई उम्मत में जब ये मामला दरपेश हो, आगे चल के किसी को बड़ी चीज मिले तो उसके ऊपर क्या हुक्म है। वो नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को सीख दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने खाना खाया है, नबी अलैहिस्सलाम ने बैठ के पानी पिया, नबी अलैहिस्सलाम ने जो कंकड़ पत्थर पे आराम फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी दी है, उम्मत को एक सुन्नत अता फरमाई है कि इस सुन्नत के ऊपर चलोगे तो जन्नत में जाओगे, अल्लाह के मकाम को मारिफत को हासिल करोगे। नबी अलैहिस्सलाम हदीस से इस्तेदलाल मिला है। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने 11 लाख मसाइल को इस्तेमाल किया, किससे? इसी से छोटी छोटी बातों से इस्तेमाल किया कि नबी ने ये फरमाया इस मौके पर, नबी ने इस मौके पर ये फरमाया। नबी को नहीं मालूम था इस चीज के बारे में? नबी को सब मालूम था। नबी का ना करना, नबी को उम्मत को ये बात कहना, ये उम्मत के लिए सीख है, समझे? भूखा होता, भूखा से नहीं मतलब है, जो पूरी कायनात को कायनात को जो है सब संवारने आए, कायनात को जुल्मत से अंधेरे नूर तक पहुंचाने आए, वही भूखा रह जाएगा। वो तो उम्मत ने, नबी ने आजिज़ी की है, नबी ने आजिज़ी फरमाई है अल्लाह की बारगाह में। वो नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं ना तो पहाड़ों को हुक्म देते, वो पीछे पीछे चलते। अगर हजरत अली फरमाते, जामे मिशकात की हदीस है, जब मैं सहरा से निकलता तो पहाड़ कहते हैं सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं पहाड़ों से नबी की सलाम की आवाज़ सुनता। दरख्त को जिस हुक्म देते वो दरख्त चला आता। यहूदी नसरानी कहते हैं मैंने तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी तरफ दरख्त झूमता। ये तो नबी है, नबी चाहते तो क्या नहीं हो जाता। ऐसे ये तो नबी को आज ही समझते हो, अपने नबी को जिसका कलमा पढ़ते हो उसकी शान में तुम कमियां निकालते हो।
हाँ हाँ बताता हूँ बताता क्या हो? नबी के जिसका कलमा पढ़ता हो, यहूदी तो सब कुछ मानते हैं अपने नबी को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहते हैं मेरे मूसा तो पानी पर चलते थे, मेरे ईसा तो पानी पर चलते थे, इंजील में तो पानी पर चलना आया है, तुम्हारे नबी ने पानी पर चला है। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। अब सुन ले मेरी दूसरी हदीस हंस रहे हो तुम लोग, तुमको जवाब मिल रहा है इस चीज का, तुम हंस रहे हो, तुम एतराज नहीं कर पा रहे हो मुझ पर। मारिया कत्तार रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक मिस्री भाई थे जो उनके इलाके के थे, वो अक्सर आकर बैठा करते थे। वो खंसा थे यानी हिजड़ा थे वो, लेकिन मुनाफिकों ने अफवाह उड़ा दिया कि ये जाकर वहाँ पर बैठते हैं तो कोई चक्कर है। अल्लाह के रसूल को जब पता चला तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया अली को कि जाओ उसकी गर्दन मार लो। अली रजी अल्लाह ताला उनको ढूंढ रहे थे, वो कुएं में नहा रहे थे, तो पता चला कि उन्होंने खींचा तो एक झाड़ था उस कुएं में, उससे उनका तहमत लटक गया या फंस गया तो वो नंगा हो गए। तो नंगा हो गए तो पता चला सामने खड़े थे तो उनका ऐज़ाए तनासुल ही नहीं था। तो अली रजी अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया और आकर अल्लाह के रसूल ने सारा वाक़या बयान किया कि वो तो खंसा है, हिजड़ा है। तो कहा शाहिद गायब से ज़्यादा नहीं जानता, यानी मतलब वो गायब जो है ना वो शाहिद देखने वाला गायब जो है ना शाहिद से ज़्यादा नहीं जानता। अल्लाह के रसूल ने अपने आप को गायब से तस्बीह दिया और अली रजी अल्लाह ताला को शाहिद करार दिया कि गायब जो है ना शाहिद से ज़्यादा नहीं जानता। तो अल्लाह के रसूल तो अपने आप को गायब कहते हैं। देखिए ये हिकमत पैगंबरी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के ऊपर हद जारी करने का हुक्म है तो औरत है तो उसके ऊपर कितनी हदें जारी की जाएंगी, उसके लिए एहकाम क्या होंगे। मेरी बात सुन लो, ये फिकी मसाइल है, तभी तो कहते हैं फिक में अहले हदीस में फिक नहीं होती है। सब जितनी फिक लेते हैं हनफी से लेते हैं। आदमी कत्ल हो जाता। अरे मेरी बात सुनो, कत्ल अगर ये बताओ नबी से पूछा, हजरत अली से पूछा गया कि ये बताओ अगर वो जो है मुखन्नस है तो वो फिर उसके जनाजे नमाज मर्दों वाली होगी कि औरतों वाली होगी? तो हजरत अली ने फरमाया वो पेशाब देखा जाएगा कि पेशाब कौन जगह से करता है। अगर औरतों वाली पेशाब होगी तो उसकी जनाजा औरतों वाली होगी, और उसकी पेशाब अगर मर्दों जैसी होती है तो उसकी नमाज ही होगी। कहा इससे भी ना पता चल सके तो क्या देखा जाएगा? तो फिर आपने दूसरा हवाला दिया। फिर पूछा अगर इससे भी ना पता चल पाए तो उसकी पसली गिनी जाएगी कि उसकी परती औरतों वाली की आदमी वाली है। तो ये फिकी मसाइल है। अगर किसी चीज को किसी चीज के ऊपर नाफिज किया जाए तो उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? उसको मारना चाहिए नहीं। औरतों के लिए जिहाद नहीं है। औरतों के लिए जिहाद क्या करार दिया कि अपने शोहर की वफादारी करे। हाँ, तो ये सब फिकी मसाइल है कि औरतों के लिए मुनफरिद हुक्म है, आदमी के लिए मुनफरिद है। अगर ऐसा आदमी मिले तो क्या करना चाहिए, ये ऐसा मिले तो क्या करना चाहिए? अगर वो औरत निकले और ये पता ना चल पाए कि मुखन्नस है कि मुअन्नस है वो, तो उसके ऊपर क्या हुक्म करना चाहिए? तो अलग अलग हुक्म होता है, अलग अलग तरीके कार होते हैं। इसका मतलब है कि नबी नहीं जानते थे, नबी वो नहीं जानते थे, नबी ये नहीं जानते थे। ये सब कहना तुम्हारी लौकी की मक्कारी थे। नबी अलैहिस्सलाम ने ये इस्लाम दीन मुकम्मल दीन है। मैं आपको बता रहा हूँ ये इस्लाम दीन मुकम्मल इसलिए दीन है क्योंकि हिंदुओं में शादी तो 7 फेरों से हो जाती है मगर तलाक वो कोर्ट देने जाते हैं। और इस्लाम वो ऐसा वाहिद मुकम्मल दीन है कि तलाक भी इसी मजहब के मुताबिक होती है और शादी भी इसी मजहब के मुताबिक होती है। इस्लाम वो मजहब है जो इस्लाम को औरतों को हक देता है, आदमियों को तकाबुल करने का हुक्म देता है। अब मैं तीसरी हदीस बताऊं, चौथी हदीस बताऊं? जितने तुम सवाल पूछो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप सिर्फ लीला बयान करते हुए हैं, मैं बताता हूँ। अल्लाह के रसूल पूरी कौम को कत्ल करने का इरादा कर लिए और बैते रिजवान हुआ। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला सुलह कराने के लेट हो गया, वहाँ से नहीं आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है मेरी हाथ पर जो बैत करे? अल्लाह ने फरमाया कि वो हाथ तुम्हारा नहीं था, वो अल्लाह का हाथ था। उस बिना पर वो जो आयत का तर्जुमा है मैं पढ़े दे रहा हूँ, वो जिन्होंने कुफ्र किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवर रोके पड़े रहे। अब अहमद रजा का तर्जुमा सुना रहा हूँ, पड़े रहे अपनी जगह पहुँचने से। और अगर ये ना होता कि कुछ मुसलमान मर्द और कुछ मुसलमान औरतें जिनकी तुम्हें खबर नहीं, कहीं तुम उन्हें रौंद न डालो तो तुम्हें इनकी तरफ से अनजानी में कोई मलाल या मकरूह पहुँचे तो हम तुम्हें ज़रूर उनके कत्ल की इजाज़त देते। इनका ये बचाव इसलिए है कि अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल करे जिसे चाहे। अगर वो जुदा हो जाते तो ज़रूर हम उनमें से काफिरों को दर्दनाक अजाब देते। यहाँ पर मामला ये था कि कुछ लोग उसमें ईमान वाले थे, जिस कबीले पर हमला करने वाले थे अल्लाह के रसूल और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला गए थे वहाँ पर सुलह कराने और लेट हो गया था। तो कहा कि उस्मान गनी का कौन कौन कत्ल का बदला लेगा? तो सब लोगों ने अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने के बाद भी अल्लाह ने रोक दिया कि वहाँ पर कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो मतलब जबान पर दिल में ईमान लिए हैं लेकिन जबान पर इकरार नहीं कर रहे हैं मुनाफिकों के मुशरिकों के खौफ से। तो इसलिए वहाँ पर ये पूरी आयत बयान की गई कि अगर ये मालूम ना होता कि कुछ मुसलमान मर्द और कुछ मुसलमान औरतें जिनकी तुम्हें खबर नहीं, ला तालमून, जिसकी तुम्हें खबर नहीं, कहीं तुम इन्हें रौंद न डालो, तो इन्हें रौंद न डालो, इसलिए अल्लाह ने रोक दिया उस जंग को।
ठीक है। तो तो अगर इससे ये क्या ये जो है तासुर ना, लेते हो आप? तासुब ये लेता हूँ कि तासुर अल्लाह में के रसूल तासुर को क्या अगर लेते हो? हाँ, तो पता चला कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला आ रहे हैं, सब लोग ने कहा क्या हुआ, कहा हाँ मामला सुलझ गया है, हो गया है, 2 साल तक हम लोग नहीं जाएंगे हज के लिए, ऐसा कुछ हुआ मामला। हाँ, सुलह हाँ, हुदैबिया जो ये- हुआ था मुझे हाँ, मालूम है। हुदैबिया, हाँ। तो इससे तो क्या ये मुराद लेते हो कि नबी को नहीं मालूम था? उस्मान हाँ, और गनी नबी ने रजी ऐसा अल्लाह कर ताला दिया, हजरत के उस्मान के देर खून का होने बदला की- लेने के लिए आपने कहा। हाँ, तो उस्मान देखिए गनी रजी अल्लाह जनाब, ताला देखिए देर जनाब, हुआ तो इधर नबी अल्लाह के रसूल ने बैत अलैहिस्सलाम को क्यों सब लिया? मालूम था। और जामे तो कैसे मिशकात, बैत अबू ले दाऊद, लिए? सुनन तिरमिजी की बैत हदीस है, कैसे नबी ले लिए? अलैहिस्सलाम ने अपनी मौजूदगी में फरमाया कि जो है खालिद बिन वलीद ने झंडा लिया तो अल्लाह को फतह अता फरमा दी। आप मस्जिद ना, मदीने बैत- में बैठे हैं और जंगे जो है वहाँ पे अल्लाह के जंगे रसूल ने बैत कादिसिया लिया और कि जंगे वो उस्मान सब गनी हो के रही कौन हैं। से कत्ल का देखिए नबी अलैहिस्सलाम को सब मालूम है। नबी यहाँ कत्ल कर देखते दिए नबी गए अलैहिस्सलाम ने हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम नमाज फरमा रहे थे और साहबा ने देखा आपका हाथ ऊपर गया, फिर पीछे आया, फिर ऊपर गया, फिर पीछे आया। साहबा नमाज से फारिग हुए, या रसूलल्लाह आप नमाज पढ़ा रहे थे, कहा मेरे सामने जन्नत पेश की गई, मैंने चाहा उसमें से शगुफे तुमको तोड़ के दूं, मगर अल्लाह का वादा है कि जन्नत को जन्नती मकाम पे मिलेगा खाना। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम के सारे सामने पूरी कायनात ऐसी है? नबी अलैहिस्सलाम नहीं जानते जन्नत आपके सामने पेश कर दी गई, पूरी दुनिया के सबक आपके सामने खींच के लाके दिखा एक दिया। अफवाह उड़ा कि उस्मान अफवाह गनी नहीं कत्ल उड़ा, कर अफवाह दिए से क्या गए। होता है? अफवाह उड़ने से तो क्या बात उस्मान हकीकत हो गनी जाती कत्ल है। कर दिए हैं। हाँ, तो देखिए अल्लाह के अफवाह रसूल ने उड़ने बैत से लेना अगर शुरू कर अफवाह भी दिया। उड़ेगी और आपके पास सुनो, 4-5 सुनो, गवाह भी इल्म आएंगे गैब ना रखने तो वाला, आप भी उसको यकीन हाजिर मानेंगे, नाजिर, मगर हाजिर जो नाजिर हिकमत होने वाला। पैगंबरी होती है वो सब चीज जानती है। फिर तुम लीला बताने लगे। देखिए ऐसा नहीं होता उस्मान है, ऐसा गनी- नहीं, हंसो मत, ये जवाब तुमको जो मिल रहा है हंसो मत, हंसो मत, ऐसा लीला- नहीं है। बहुत सी चीजें लीला अब तुम तुम्हारी- बहुत सी चीजें अच्छा, क्या चलो, मतलब नबी को नहीं, नबी नबी की को हर बीवियाँ चीज कहती हमारे तुमको नबी को कैसे मालूम मालूम? था। नबी नबी की अलैहिस्सलाम बीवियाँ को हर कहती चीज तुमको मालूम था, कैसे हर मालूम? कुछ भी मालूम था नबी को। हाँ, नबी की बीवियाँ कहती तुमको कैसे मालूम? नबी की बीवियाँ कहती क्या तुम्हें कैसे मालूम? हाँ, क्या? कहती तुमको कैसे मालूम क्या पड़ा? चीज मालूम? तो अल्लाह के रसूल ने कहा ना, कहा कि मैं अब कुछ जान गया, कहा इल्म वाले खबरदार ने मुझे बताया है। हाँ तो उसमें क्या एक खराब? अगर मामला- नबी ने बताया मेरे इल्म में मेरे परवरदिगार ने मुझे बताया, हम भी तो कहते हैं मैं हाँ, आपके तो परवरदिगार मामला ने ये आपको हुआ सब था, कुछ सिखा दिया। मामला ये हुआ हाँ? था कि वला हाँ, तो रद्वी आप वला सुनो। याबिसिन लीला वो छोड़। अल्लामा का मालम तो कुन तालम है महबूब, जो आप नहीं जानते थे वो भी मैंने आपको सिखा दिया। जो आप नहीं जानते थे, हम तो ये कहते हैं मेरे नबी को तो मेरे रब ने सिखा दिया। जानता था। उनके रब ने सिखाया। अल्लामल इंसान मालम यालम, आदमी को सिखाया जो वो नहीं जानता था। आदमी को सिखाया? हाँ, अल्लामल इंसान मालम यालम। पहले इसकी तफसीर सूरह पढ़ अलग के आओ, की पहले आयत है। कुरान की आयत पढ़ना अच्छे से हाँ, सीखो। तो जब हमने नहीं जानते हो तो फिर इंसान को इसके बारे सिखा में दिया क्यों जो वो बोलते नहीं हो? जानता। हमने इंसान को सिखा दिया जो वो नहीं जानता था, हमने नबी को बता दिया जो नहीं जानते थे ना। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनो, जितने सवाल ना, ना, पूछोगे पूरा- अच्छा दर्जा सवाल सुनो, से नहीं सुनो, डरता सुनो, सुनो, है। सुनो, सारे सुनो, सवाल सुनो। का मैंने तुम्हें हम- जवाब दिया है। हमने इंसान को ए नबी, हमने तुम्हें वो बता दिया जो तुम नहीं जानते थे। ये वाकया ये हदीस में इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तहत हदीस लेकर आए हैं। ये हदीस मैं बयान करूं आपसे? देखिए हदीस बयान करने नहीं जानता था तो आपको सिखा दिया। हाँ। तो आपको हाँ। हर चीज वो आपको सिखा दिया जो आपको नहीं मालूम थी। ना, हमारे ना, ना, नबी ना, को ना, हम ना, ये कहते हैं नबी को ऐसा अपने नहीं है। परवरदिगार ने सब कुछ सिखा अरशद दिया। रजा भाई, वहाँ पर चोरी का मामला हुआ था। चोरी का वो मामला हो, चोरी किसी चीज का मामला हो, एक हदीस से ना, एक ना। कुरान के आयत से 20-20 इस्तेदलाल होते हैं और 20-20 हाँ, उसका तो मेरा- बातिनी तो मैं- जाहिर मुझे माना भी वो होता सिखा दिया है। जो हाफिज अल्लाह अबुल इंसान मुअल्लिम ने मालम हिजरतुल यालम। अलिया के अंदर फरमाया है कि हर आयत का मौला अली फरमाते उसका जाहिर माना होता है, उसका बातिन होता है, बातिन का बातिन होता है। तो वही बात है ना, हर मालम चीज का यालम यहाँ पे बातिन दिया होता ना। है, कुरान का भी बातिन है। जाहिर माना कुछ और होता है, बातिन माना कुछ और होता है। तो इंसान भी पूरा जानता है। अब मैं आपको अल्लाह बताऊं, इंसान मालम मुकद्दियात, हुरूफ यालम। मुतशाबिहात, ये कुरान में जिसका तर्जुमा नहीं लिखा है उसको भी नबी जानते थे वो, मगर अल्लाह और उसके बीच में जो है चोरी का राज की वाकया बातें हुआ थी। था, उस वाकये पर कहा गया था कि हमने नबी को तुमको बता दिया जो तुम नहीं जानते किसी थे। चीज को बता यानी दिया, उस पूरा वाक्य को मामला। दलील थोड़ी ना बनाएंगे। नबी को वो सिर्फ सिखा दिया उसी जो आप नहीं वाकये को जानते बनाया थे। जाएगा। उसमें उमूम की, इसमें माँ है, माँ उमूम के लिए नहीं, माँ में सब में आता है कि जो आप नहीं जानते तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो यहाँ ये पर नहीं भी तो किसी चीज की उमूम है। तखसीस की कि आपको जो है अल्लाह इंसान दुनिया का इल्म मालम, नहीं सिखाया, मालम, दुनिया का इल्म नहीं मालम जानते थे, यालम। आपको दुनिया का हाँ, माँ आ ये- गया उसमें। यहाँ पे और भी माँ तो उमूम है। उमूम के लिए आता है। हाँ, तो उमूम ये भी है, उमूमियत में मालम सब कुछ यालम। आता है, सब चीज सिखा हाँ, तो- दिया, सब चीज हाँ, तो सिखा दी, मालम इसमें किसी यालम। चीज की कैद नहीं लगाई। कुरान में मालम आया है, यालम किसी ये भी- चीज की नहीं है कि अरे आपको तो- जो है जानवरों की पहचान नहीं थी आपको सिखा दिया, आपको जो है तो बांटने मालम- की तकसीम नहीं थी आपको सिखा दी है। नहीं, उमूम आ गया, उसमें उमूमियत देखी जाए, इसमें अरशद रजा उमूमियत खामोश, कितनी है, तमाम खामोश, चीजें आती खामोश। जमीन, इसमें तमाम चीजें आती हैं, सब कुछ सिखा दिया नबी को। हाँ, तो यहाँ पर भी है मालम यालम। अल्लामल इंसान मालम यालम, माँ उमूम के लिए देखिए आता है देखिए, ना। वो इंसान के लिए है, वो दूसरे मसले हमको के भी लिए है, सिखा मैं दिया। आपको बताऊंगा। पहले हाँ, आप कुरान की तो वहाँ आयतें पर पढ़ना चोरी का सीखें, मामला कुरान था। की आयतें में वहाँ पर जानना चोरी का मामला सीखें, था। उल्टी सीधी मैं आप बता दूं? मखरज के साथ पढ़ा मैं करते बता हैं। दूं। तफसीर किताब तिरमिजी किताब देखिए मैंने क्या कहा था शुरू में आपसे, मैंने यही कहा था आपसे कि मैं आपको हर चीज का सवाल का जवाब दूंगा, मगर आप वहां भी आप मानेंगे नहीं।
क्योंकि आपको कमी निकालना है। जवाब दे नहीं और पा हम रहे ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो मुखलिस कौम है जिसके बारे में नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत का सवाद आजम हमेशा हक पर रहेगा, और ये हम लोग हक वाली जमात है और सवाद आजम हम ही है। तुम लोग गैर मुकल्लिद हो, तुम लोग अभी चिट्टे बिट्टे हो, पूरी दुनिया में सब मुकल्लिद गुजरे और सबके सब अहले सुन्नत है। मिस्र चले जाओ, यमन चले जाओ, हर जगह पे मुकल्लिद लोग गुजरे और सबके सब सुन्नी मौजूद है। तुर्की में भी सुन्नी मौजूद है। अहले सुन्नत वल जमात का हमेशा अक्सरियत गुर हमेशा हक पर रहेगा, मेरे नबी का वादा है। एक हदीस और, तुम लीला बयान करो, मैं हदीस बयान मैं लीला नहीं बयान करता हूँ, मैं हिकमत पैगम्बरी बयान करता हूँ। अल्लाह रसूल एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुलाकात के लिए गए, हदीस नंबर में दे दूंगा तुमको, लिखा हुआ है सब। अल्लाह के रसूल के पास मुलाकात के लिए तो वो झांकने लगे, तो अल्लाह के रसूल कंघा कर रहे थे, तो झांक के देखा तो खुटखुटाया दरवाजा, तो खोला तो कहा कि अल्लाह के रसूल मैं झांक रहा था कि आप कंघा कर रहे थे, मैं झांक के देखा तो आप कंघा कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मैं जानता कि तू झांक रहा है तो ये कंघी तेरे आंख में कोच देता, अगर मैं जानता कि तू झांक रहा है तो ये कंघी तेरे आंख में कोच देता मैं। ये हदीस तो अल्लाह के रसूल खुद कहते हैं अगर मैं जानता तू झांक रहा है। तो जानने से क्या मुराद है कि रसूल अल्लाह नहीं जानते थे? इससे ये मुराद है कि नबी ने फरमाया मैं नहीं जानता, मैं ये तुम जो हो रहा मैं नहीं जानता था। नबी अलैहिस्सलाम ने हिकमत दी। देखो अबू ज़र से भी रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए, खटखटाया तो नबी ने फरमाया कौन? तो क्या अगर नबी जानते तो फिर कहते कौन? तो नबी ने उम्मत को हिकमत दी है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर चोर आ रहा है, डाकू आ रहा है और तुम दरवाजा खोल दे रहे हो, कोई तुमको गिरफ्तार कर, नबी ने कहा कौन? आवाज देगा, आवाज जब देगा मुंह से निकलेगा तो पता चलेगा कि औरत इंसान है, आदमी की मर्द है। नबी अलैहिस्सलाम ने हुकमत दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फिक़े हनफी की मोतबर किताब में आता है कि किसी घर पे झांका नहीं जाता है, किसी के घर पे जो है नजर नहीं डाली जाती, किसी के घर पे जाली में धरोखे में नहीं। तभी ने कहा कि अगर अपने दरवाजे हो तो उसमें पर्दा डालो, दरवाजे लगाओ, बेनमाजियों की जो है निगाह जाएगी तो लोग जो है घर में बेबरकती फैलेगी, कोई झांकेगा तो घर में ये होगा। ये नबी ने हिकमत अता फरमाई है। और तुम खैर नबी सुल्तानुल अंबिया के घर में झांक रहे हो, तुम सुल्तानुल अंबिया के घर में झांक रहे हो, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को सीख दी अगर कोई आए झांके तो उसके लिए क्या हुक्म है। ये सब मसाइल है, ये तुम क्या समझोगे? सुनो मुस्लिम तुम क्या समझोगे इसका माना क्या है? मैं तो कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा, तुम हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। या रसूल अल्लाह, आपकी तोता वो है कि हम जुबान से बयान नहीं कर सकते। जमीन और आसमान को कागज बना दिया जाए, समंदरों को स्याही बना दिया जाए और पेड़ को कलम बना दिया जाए, रसूल अल्लाह की मदह लिखी जाए तो हम लोग आजिज हैं। क्या रसूल अल्लाह की शान है, हम क्या बयान कर पाए? तुम लोग अपने नबी का कलमा पढ़ते हो, इस तरह की गुस्ताखी तुमने अभी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में की है, उनको अनपढ़ कह दिया नऊज़ुबिल्लाह। तो तुम लोग वो कौम है जो नबी की गुस्ताख हो। तब तुम लोग दुनिया में हमेशा अक्सरियत बाकी है। अहले सुन्नत वल जमात से तुम्हारा लोग का कोई ताल्लुक नहीं। जमील अब आगे सवाल करो, बोलो जमील आगे सवाल करो। हाँ तो सवाल करो, जितना करना है करो सवाल। मैं कह रहा हूँ अल्लाह रसूल के अहले बैत के टुकड़ों पर पलने वाला है खादिम कभी सवाल से पीछे नहीं भागता। 20 सवाल करोगे अरशद रजा यहीं पे तुम्हारे 20 सवाल के जवाब देगा। अच्छा हाँ ये रिकॉर्डिंग लोग जब सुनेंगे तब लोग कहेंगे कि अरशद रजा से इतने लोगों ने सवाल पूछा, ऐसा नहीं कि इसने जवाब ना दिया हो। अच्छा 7 सहाबी को अल्लाह के रसूल ने भेजा जासूसी। हाँ वो शहीद हो गए। हाँ वो शहीद कर दिए। तो 3 सहाबी उस पर तो ये बताओ शहीद हो गए तो इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है? जब उनकी मौत आएगी तो क्या उनकी मौत का एक इंसान की मौत का करीना होता है, किसी अंदाज में शहीद होते हैं और मौत का फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत ही मुक़य्यद कर देता है। अरे लीला छोड़ो यार, उसमें लीला नहीं छोड़ो, ये हिकमत होती है बाबू, अंग्रेज के बाबू, ये हिकमत होती है, ये हिकमत होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबे कहब को 300 साल सुला दिया, फिर उसके बाद जिंदा कर दिया। नहीं हजरत सहाबे कहब का नाम तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इनको 300 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुला दिया। 300 साल से सोते रहे ज्यादा वो, और उसको वापस भी आपने उनको जगा दिया। ये हिकमत खुदाबंदी हो तो क्यों जगाया? इसके पीछे भी वाक़यात मिलते हैं, इसलिए जगाया ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हक्कानियत पता चले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा क़यामत के दिन। हाँ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमली जामा लोगों को दिखाकर ये बात पैदा कर दी कि देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत देखो। खामोश हो जा भाई, खामोश हो जा पूरी बात। तो जब तुम मेरे सवाल का हर तुम तुम्हारे सवाल का जवाब है। अरशद रजा इस सोशल मीडिया में ऐसे अरशद रजा बन गया है। ठीक है। अरशद रजा, उन लोगों ने कहा जब 3 सहाबी चढ़ गए ऊपर तो उन लोगों ने कहा नीचे आओ। हाँ तो उन लोगों ने कहा कि नहीं मैं नहीं, तो तीर चलने लगी ऊपर उनके ऊपर। तो उन लोगों ने कहा कि अल्लाहुम्मा अखबरना अन्ना नबी का, ऐ अल्लाह मेरी खबर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दे, ऐ अल्लाह मेरी खबर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दे।
تو जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हदीस के अल्फाज हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे सहाबा, सातों सहाबा शहीद हो गए और उन्होंने ये बात कही, अल्लाहुम्मा अखबरना अन्ना नबिय्य का, तो अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ खबर लेकर कि तुम्हारे सहाबा शहीद हो गए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मदद, ए हाजिर नाजिर इल्म गैब वाले मदद, हाँ कहा मेरी खबर मेरे नबी तक पहुँचा दे अल्लाह। ये अकीदा था सहाबा का। हाँ बोल लिया। तो तुम कहते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर थे। नहीं बोल हाँ, लिया। जानते थे। नहीं, फरियाद उम्मती जो करे हाल इज़ार में कि मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। जो उम्मत में हम लोग साबित हो, वो नबी कैसा जो अपनी उम्मत की खबर ना रखे, वो नबी ऐसा जो अपनी उम्मत की जो अपने उम्मती से बेगाना हो, अपने कलमा पढ़ने वाले को अपनी नबी। एक माँ होती है, वो अपने बच्चों के ऊपर मुसीबत आती है तो उसका दिल बोल पड़ता है कि मेरे बच्चों के ऊपर मुसीबत आई है। वो तो सारी कायनात के नबी है, नबी बनाकर वो अपनी उम्मत के ऊपर गिरा गुजरेंगे तो उनको मालूम नहीं होगा। सब कुछ मालूम होता है नबी अलैहिस्सलाम को, मगर नबी अलैहिस्सलाम खुदाबंदी की हिकमत में राजी रहते हैं। समझे? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि नबी नहीं जानते हैं, नबी को नहीं मालूम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये मालूम था कि नहीं मालूम था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मुर्दों को जिंदा करेगा? तो हजरत इब्राहिम ने क्यों सवाल किया है अल्लाह ताला तू जो है मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? तो कहा क्या इब्राहिम तुम पर यकीन नहीं करे तत्मइन्नुल कुलूब, यानी कि अपने दिल की जो है राहत के लिए। तो क्या उनका ईमान कमजोर था इस बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इब्राहिम परिंदे पाल, इनको कीमा बना फला फला पहाड़ी पे नाम, इनको नाम से पुकार, वो तेरे नाम पे आएंगे। वो उन्होंने परिंदों को ज़बिया किया, उसको जो है कीमा बना दिया, उनके टुकड़ों उनको जो है गोश्त को अलग अलग जो है छोड़ दिया। उसके बाद अब उनको नाम से पुकारा, वो उड़ते हुए चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या ये था कि वो अपने अल्लाह के ऊपर शक करते? उन्हें कहा अल्लाह ताला मेरे दिल को सुकून चाहिए, मेरे दिल को इत्मीनान चाहिए। तो उन्होंने दिखाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम को ये नहीं मालूम था कि वो जाएंगे और शहीद हो जाएंगे मेरे साहबा? क्यों अपनी उम्मत के बारे में बेखबर रहेंगे? जो ये कहता हो कि मैं चाहूँ तो तुम पर हर साल हज फर्ज कर दूं, मगर मेरी उम्मत की मुशक्कतों को देखकर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, जब भी आप आते थे तो सबसे पहले घर में आते थे, सुनो मेरी बात मुकम्मल हो जाने दो, तो मिसवाक करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मिसवाक अल्लाह नबी चाहते तो उसको फर्ज करार देते थे, मगर अपनी मुशक्कत की वजह से अपनी उम्मत के ऊपर गिरा कि मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो। जो नबी अपनी उम्मत के तकलीफ के लिए तकलीफ हो, उसके दिल में पैदा हो कि मेरी उम्मत को तकलीफ गुजरेगी, वो उसको नहीं मालूम कि मेरे 7 सहाबा शहीद हो गए। हजरत इब्राहिम को नहीं मालूम है कि हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह तो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? क्या उनका ईमान कमजोर था? अरशद थोड़ा खामोश हो जाया करो, मेरी भी बात सुन लिया करो। तो तुम ऐसे भद्दे एतराज करते हो, तुम जाहिलों वाले। तुमने जो भी बताया कि मैं चाहता तो फर्ज कर देता। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर कोई आदमी ये समझे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कुछ फर्ज किया, ऐसा आदमी जिंदगी है। हमारे नबी है मालिको मुख्तार, हमारे नबी को हर नबी ने अलैहिस्सलाम ने सुना। सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तुम बच्चे अभी कुछ नहीं जानते हो। अच्छा ये बताओ इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबुन मौकूता, नमाज बेशक मुसलमानों पे फर्ज उनके मुकर्ररा वक्तों में। मानते हो इस बात को? हक मानते हो कुरान के फैसले को? नमाज फर्ज है उनके मुकर्ररा वक्तों में, मानते हो? कुरान जिसमें तुम मेरे को लानत मलामत कर रहे थे अरशद रजा, मानते हो कि नहीं मानते हो? मलामत सुनो अरशद रजा, मेरी बात सुनो। तुमने ये सवाल किया कि जो ये कहे, अब मेरी बात बताओ, नमाज मुकर्रर है नहीं मुकर्रर वक्त में? मुझे ये नमाज को जमात कर नहीं सकते तुम कि जोहर की नमाज को असर में पढ़ लिया, असर की नमाज ईशा में पढ़ लिया शिया की तरह? खामोश अरशद रजा, जिस चीज में तुमने मुझे लानत मलामत किया है वो चीज देखो, मैं आज पढ़ता हूँ सूरह अनकबूत आयत नंबर 48। मलामत मैंने किया है, मेरी बात सुन लो। जो तुमने अभी सवाल किया है कि नबी अलैहिस्सलाम ये चाहते, सूरह अनकबूत आयत नंबर 48 मेरी नबी की शान तो सुन लो। क्या नबी की शान भी तुमको नसीब में नहीं होती? अल्लाह के रसूल पढ़े लिखे नहीं थे, उस पर तुमने मुझे लानत मलामत किया था। तुम्हें गारत करे अल्लाह ताला तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दे, जो मेरे नबी के बारे में ये कहे कि नबी मेरे अनपढ़ थे। गारत करे अल्लाह ताला। देख कुरान की आयत सुन, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुदा गारत करे, तुम्हारा फैसला जल्द कर दिया बारी ताला। कुरान की आयत सुन, जाहिल का फैसला अमल करो। ये नबी का कलमा पढ़ता है और नबी को कह रहा है कि नबी अनपढ़ थे, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह इसको ऐसी मुसीबत में गिरेगा तो फिर तेरी पुकार खुदावंदी मुताल भी नहीं सुनेगा, उसको रद्द कर देगा। कुरान की आयत सुन मुशरिक, कुरान की आयत सुन। चल रख, तुझसे मैं बात नहीं करता, तू नबी का गुस्ताखी में बात नहीं करता। कुरान की आयत सुन रे मुशरिक, देख